नमस्कार, मेरा नाम है राजीव बजाज यानी RKV और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। और प्रदीप नाम्बियार जी और हम हैं, मतलब मैं हूँ, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, Vanakkam, Shalom, in Chinese, Ni Hao, in Japanese, Konnichiwa. Pradeep ji. Avariyako Jambo Wana from viewers from East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Absolutely wonderful. So which means now we'll have Rahul Gandhi officially as the LOP, Leader of the Opposition in the Lok Sabha. Because they have got 99 plus 1. The gentleman from Sangli has also pledged support. In all likelihood, he'll come back right into the Congress, so which means Congress has got about 100 seats. 100 seats. Which is not bad at all, considering the fact that everybody had written off the Congress and everybody had expected that maybe the Congress would get about 60 or 70 seats. I was expecting a maximum of about 65 or 70. They've surprised us all and they've got 100 seats. And in fact, most of the Congress leaders, senior leaders themselves thought 75 भी मिला तो बहुत हो गया। 75 बहुत ज़्यादा होती हैं सर। Yes, yes. और BJP has also surprised us by deciding they will not win 350 seats this time. Exactly. उन्होंने तय कर लिया साहब हम तो 350 सीट नहीं जीतेंगे। क्यों तय किया मुझे मालूम नहीं। सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए, उन्होंने तय कर दिया साहब कि हम नहीं जीतेंगे इस बार, मतलब that's it। क्यों तय किया मुझे मालूम नहीं है। So hat trick for Mr. Modi. Mr. Modi becomes Prime Minister for the third consecutive time, just like Pandit Jawaharlal Nehru. Of course, he does not have Pandit Jawaharlal Nehru's majority, but he'll be the Prime Minister for the third time. And we are in for rock and roll. That's my opinion, because when Nitish Kumar tells you at least 4 to 5 times in his speech कि हम यहीं हैं, आपके साथ ही हैं और कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं, हम यहीं हैं, हम यहीं हैं. That sounds a bit much. It's a bit like Sharad Pawar saying, I didn't do it. I haven't talked to anybody after he has spoken to just about everybody. But the Janata United spokesperson, he said that the India Alliance ditched Nitish Kumar. He said when he wanted to be the convener, they refused to make him the convener. He was waiting. In fact, there was suggestion that he be made the convener, and at that particular time, they refused to make him the convener. So he said, why should we listen to you now? The fact is that if he had been made the convener, let me tell you this, in Bihar, there's every possibility the votes would have been reversed. Exactly. JDU and the Congress and Tejasvi Yadav would have got about 24 to 30 seats. The entire caste equations would be in Congress's favor. Yes. But it didn't happen. In fact, if you remember, you and I spoke about it right over here, कि नीतीश कुमार जी को convener क्यों नहीं बना रहे? Exactly. उन्होंने तय कर लिया भैया नहीं बनाएंगे, वह ना बनाओ कोई बात नहीं। और इसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी मर्तबा शपथ ग्रहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री की भूमिका में। That's what they said. You never let him be the convener, so why should we be with you? There's no way we should go to be with you. Well, when they say there's no way we're going to be with you, there's a possibility that they're bargaining for the prime minister. Some conversation is going on. And Nitish Kumar's ambition, all his life, I know Nitish Kumar very well. Nitish Kumar जी की एक ambition है, एक ना एक दिन तो प्रधानमंत्री बनना है, और हो भी सकता है। अगर उनका 12 सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। BJP is very clever not to rely totally on both of them. They have made the probably alternate arrangements by bagging on the 18 to 20 independents with them. Pradeep ji, at the moment they have 294. Yes, yes. 294 में से अगर आप 28 निकाल लें, अगर आप 28 निकाल लें तो 273 के नीचे आ जाता है, सीधी बात है। तो लिहाजा it comes up to 266. तो लिहाजा जहाँ तक इनका सवाल है, चंद्रबाबू नायडू आखिरकार क्यों जाएंगे, बीजेपी को छोड़ करके आपके पास क्यों जाएंगे? इसलिए जा सकते हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी थी, उनको जेल भी भेजा था। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब there are no old resentments. At the moment, it's a honeymoon period. I don't expect. But I think this time it was YSR who sent him to jail. This time, and it was Modi ji who actually brokered and got him out. I'm talking about the earlier time. 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018. Latest ऐसा था कि he was brokered and bought out. Correct. And then they had an alliance there. चंद्रबाबू नायडू जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त मोदी जी की सरकार नई आई थी, तब सबसे पहली बार उनको जेल भेजा गया। But that's a separate issue. But at the moment, I don't expect to see any trouble.
I don't expect to see any trouble, at least not for the first 6 months. Let's go straight across to Mr. Chandan Goswami of the BJP and let's ask him. Chandan Goswami साहब नमस्कार. जय श्री राम. जय सिया राम सर, जय सिया राम. सो तीसरी मर्तबा, तीसरी बार मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद का. कंग्रेचुलेशन सर. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, भारत के इतिहास में, कि कोई शख्स तीसरी मर्तबा ओथ ऑफ ऑफिस ले रहा है एज प्राइम मिनिस्टर. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 years? अगले 5 साल में मोदी 3.0 आपको क्या लगता है कैसा होगा? फोकस कहां पर होगा? किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा? गोस्वामी साहब बताएं. देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो. दूसरी बात ये, अभी तक मिठाई नहीं आई, रूखी सूखी बधाई आई है हर जगह से, मिठाई नहीं आई है अभी तक. जी वेट कर रहे हैं. जी बोलिए. हाँ, आ जाएगी. बोलिए. भारतीय जनतंत्र और लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व है, जिसकी खूबसूरती है जो हमें इस चुनाव में 2024 में दिखाई पड़ी. रही बात मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह हर भारतीय और जो भी भारतवासी है बाहर रहता है वह भी चाहता है दिल से. आगे 5 साल में बहुत सारे इस प्रकार से प्रोजेक्ट है, कई बिल्स है जो भारत को ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए और भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री तथा पूरा उनका मंत्रिमंडल व चुने गए सांसद इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जिससे भारत की संविधान की भी जो बातें फैलाई गई, अपना अफवाहें फैलाई गई संविधान के प्रति, उन सब बातों को वे और भारत को एक ऊंचाइयों पर में लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे. वो अफवाहों से कुचलने का भी काम मोदी जी करेंगे. गोस्वामी साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी का कहना है कि द मैंडेट इज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी. मैंडेट आपके खिलाफ है. बोले 60% लोगों ने आपको वोट नहीं किया, 60% वोट आपके खिलाफ गए. और उन्होंने कहा कि आपके दिग्गज मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह, अजय मिश्रा, राजीव चंद्रशेखर, ढेर सारे दिग्गज नेता एकदम शहीद हो गए और 63 सीट्स आप हारे. यू लॉस्ट 63 सीट्स. All this says the mandate is not for Prime Minister Modi. राहुल गांधी जी, चंदन गोस्वामी जी. ऐसा है, राहुल गांधी जी ने खुद चिंतन करना चाहिए कि उनकी यह हालत 2014 के बाद कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई. अमेठी छोड़ करके वायनाड जो नेता यहाँ से भाग गया था, जिसको इसी स्मृति ईरानी ने धूल चटाई थी, तो वह इस प्रकार की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती है. 44 पे पहुंच गई थी. ये तो जनता की मेहरबानी समझिए, जो गुमराह किया, लोगों को झूठ बोला, एक नैरेटिव भारत के और भारत के संविधान के प्रति इन्होंने फैलाया, जिसकी मेहरबानी है हमारी गोली बाली जनता ने इनको 99 सीटों पे पहुंचाए, 90 सीटों पे 99+1. सांगली का जो एमपी है उसमें he has also pledged support. उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं. ठीक है. 100 सीट जी. जहाँ फुल मेजोरिटी कांग्रेस के पास रहती थी, वो केवल 100 सीटों पर सिमट के रह गई है. जी दुरुस्त बात. यह तो उन्हें खुद के पार्टी के अंदर चिंतन करना चाहिए उसका. हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा मान, हमारा पहचान. प्राइम मिनिस्टर मोदी संविधान का रक्षा भी करेंगे और देश को प्रगति के राह पर भी लेके जाएंगे. बोले कि बहुत अफवाह फैलाया था कि हाँ बीजेपी संविधान को चेंज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा. मोदी जी ने माथा टेका संविधान के सामने और बोला कि आई प्रॉमिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल सी दैट इंडिया प्रॉस्पर्स, विकसित भारत के सपने. तो क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करने वाले थे? क्या ये नैरेटिव बैठ गया लोगों को मन में? ये हम कोई चेंज करने वाले नहीं थे, ये उनको भी पता है. जो अफवाहें फैला रहे थे, जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के पूरे देश में लोकतंत्र जनतंत्र के प्रति झूठी अफवाहें फैलाए इन्होंने,
संविधान का हर व्यक्ति आदर करता है, बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान की व्यक्ति अपने दिल में मान सम्मान करता है, पूजा करता है, जो कि हर बार जब भी शपथ लेने गए हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संविधान के उस समय पे सम्मान किया है, आदर किया है, रक्षा की है, उसी की शपथ खाई है। उसमें बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लगे इनको ये ध्यान देना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ओपनली कहा था कि हम संविधान बदलना चाहे तो हम बदल सकते हैं, उसमें बदलाव की इच्छा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ये बात, भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने कभी नहीं कही ये बात। ये कि नेरेटिव फैलाया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, जनता में इस प्रकार के झूठ फैलाया गया, एआई द्वारा फैलाया गया है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आपने देखी किस प्रकार से विदेशी रिपोर्ट आई है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए कैसा कैंपेन किया और इनको उन्होंने झूठ फैलाया पूरा अपने भाषणों में भी। इसके अलावा इन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी के फॉर्म बांटे। आपने देखा बेंगलोर में, अपना लखनऊ में व अन्य जगहों पे कांग्रेस दफ्तरों में किस प्रकार से भोली भाली जनता, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो कि एक गरीब महिलाओं के साथ में इन्होंने किस प्रकार मजाक किया, वे लाइन लगा करके खड़े हैं। उसके बावजूद भी वे दफ्तर में बराबर जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि 12 बजे आना, 10 बजे आना, 8 बजे आना, इस प्रकार वे। और उसके अलावा वो बूथ नंबर, फोन नंबर लिखना चाहते हैं वहां पे, अपना एक साधना चाहते हैं कि अगले चुनाव में हम इनको किस प्रकार उपयोग में करें। इस प्रकार के झूठ फैलाना, भ्रमित करना, ये कांग्रेस पार्टी ने और उनके जो अलायंस है उन्होंने यही काम किया है। और उसको धीरे धीरे इस बातों की सच्चाई जो है वो जनता के सामने आ रही है। गोस्वामी जी, कांग्रेस जो आपका कहना है महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया एनम, पहली नौकरी पक्की 1 लाख रुपया पर एनम, फिर हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये स्कीम्स भले कांग्रेस सेंटर में नहीं है, विल दे इनकॉर्पोरेट दैट इन द कांग्रेस रूल स्टेट्स? आपको क्या लगता है गोस्वामी साहब, दे विल डू इट? बिल्कुल, वहीं से शुरू करना चाहिए। इन्होंने पहले कर्नाटक से शुरू करना चाहिए, जहां जहां उनके राज्य में सरकार है वहां से शुरू करें ना। पिछले बार फैलाया था मध्य प्रदेश में, हम आपके किसानों के साथ एक उन्होंने मजाक किया था, किसानों के साथ आखिरी तक के कुछ नहीं किया। वही कमलनाथ इस समय हार गए, उनके मुख्यमंत्री। सर आपने स्मृति ईरानी जी की बात की। आपने कहा स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को धूल चटाई और राहुल गांधी जी भाग गए थे वायनाड। इस बार स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा, जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, जो कांग्रेस के बाहर है, जो वर्कर है बेचारा, जो राजीव गांधी जी उनको लेकर के आए थे और 1983-84 से उनको अमेठी में रखा हुआ था, यूथ कांग्रेस के थे वो, उनको इस बार 5,39,228 वोट मिले हैं। स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले हैं। तो किशोरी लाल शर्मा जी 1,67,196 वोटों से जीते और उनको 55% वोट पड़े। स्मृति ईरानी जी को 37.9% वोट पड़े। तो किसने किसको धूल चटाई, ये जरा अजीब लगता है थोड़ा सा। स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार भरा हुआ रवैया था लोगों के साथ, जो सब लोगों ने देखा है, इनफैक्ट हमें तो इतना तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने उनको मैसेज भी दिया था कि लोगों के साथ जरा ठीक ठाक तरीके से आप पेश आएं। शायद यही एक वजह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं गए वहां पे कैंपेन करने के लिए। बट स्मृति ईरानी जी का हारना आपके लिए बहुत बड़ी बात है साहब। अमेठी आप हार गए, अयोध्या हार गए, और तो और छोड़िए चंदन गोस्वामी साहब, अयोध्या हार गए, ये कैसे हो गया? और तो और छोड़िए रामलला का मंदिर जहां पर है, उस इलेक्शन बूथ पर भी, उस पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी हार गई। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, गोस्वामी साहब बताएं। इसके पीछे स्थानीय बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। जो आपने जिस बातों का जिक्र किया, कहीं जिस प्रकार मीडिया रिपोर्ट में देखा जा रहा है, हो सकता है आप बोल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई हो, इसीलिए तो जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया है। लेकिन मेरा मकसद जो था वह था कि राहुल गांधी की जिस प्रकार भाषा थी, राहुल गांधी ने जो शब्दों का उपयोग किया था, मैं उस बात पे आया था कि किस प्रकार अमेठी के अंदर में उन्होंने वहां से छोड़ करके वो वायनाड गए थे। ऐसा है, लोकल स्तर पर कई क्वेश्चन रहते हैं
स्मृति ईरानी जी होवे, अयोध्या होवे, सरकार ने उसको आगे जो उनकी तकलीफें हैं वहाँ के लोगों की, वहां पर में उस पर ध्यान देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है हमारी सरकार। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या में भी कई जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें स्थानीय स्तर पे कई तो भी नाराजगी है। इसके अलावा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा जिस प्रकार नैरेटिव फैला गया, भ्रमित किया गया लोगों को, 1 लाख रुपया कांग्रेस सरकार द्वारा गवर्नमेंट दिया जाएगा, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिस प्रकार ये थोड़ा बहुत। और महाराष्ट्र में क्या हुआ सर? महाराष्ट्र में भी आप हार गए बुरी तरह। महाराष्ट्र में तो पहली बार हुआ है बड़े सालों के बाद कि मुझको खुद को धक्का लगा है। ये तो यहाँ तो हम चिल्ला रहे थे जोर जोर से डुगडुगी बजा रहे थे, तुतारी बजा रहे थे हम लोग कि बीजेपी 335 से तो नीचे आती नहीं है, हम लोग यहाँ बोल रहे थे, और बीजेपी आ गई 9 पे महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्या हो गया सर? ओनली 9 सीट्स इन महाराष्ट्र। गोस्वामी साहब, महाराष्ट्र में एक अलग विषय, महाराष्ट्र में सबसे पहले तो संविधान का विषय आया था जी। दूसरी बात ऐसा है कि वहां पे कुछ मराठवाड़ा के आंदोलन का विषय था, और जातिवाद का जो यहाँ पर में बीच बोया गया पार्टियों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, उसमें वे बनाने में सफल हुए। ऐसा नहीं कि हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुळे साहब या गडकरी साहब, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, बहुत अच्छी तरह रात दिन मेहनत की, लेकिन जहां जातिवाद की बात आती है और जहां संविधान को लेकर के भ्रमित करने के विषय आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हमें थोड़ा सा इस प्रकार की हार पराजय का सामना करना पड़ रहा है सर। और अगर यही सूरत हाल रही तो अक्टूबर के, हमें तो डर ये लग रहा कि अक्टूबर के असेंबली इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि पूरा जातीय समीकरण और बाकी सब तो एमडीए के फेवर में है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो। नहीं, ये सब जो फैलाए गए हैं झूठ, ये जल्दी ही लोगों के सामने आ जाएंगे। आज ही हमारा नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा है, अपने संबोधित करते हुए बताया है कि भाई आने वाले समय पे हम अपना रोड मैप तैयार करेंगे। उन्होंने पहले जवाबदारी लेती हुए इस्तीफे की एक पेशकश की थी केंद्र के पास में, लेकिन गृह मंत्री साहब ने उन्हें एज इट इज रहने को कहा गया क्योंकि उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं नहीं गिरे, इसलिए संदेश देने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें वे गहन चिंतन शुरू है उनका, वो आने वाले समय में जो भी फैक्टर्स है उसको ठीक करने की कोशिश। लेकिन सर आपके इतने दिग्गज नेता कैसे हार गए? बीजेपी के दिग्गज नेता कैसे हार गए सर? दिग्गज नेताओं में से पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, उसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 स्टेट मिनिस्टर। और गोस्वामी साहब, आप जहां से आते हो पूरे विदर्भ यूजुअली 8-10 में से 8 आप जीतते हैं, मगर आप उल्टा हो गया, 10 में से 2 जीत गए, 8 हार गए। ये क्या हो रहा? मींस विदर्भ में मायावती भी खड़ी थी, अंबेडकर जी भी कैंडिडेट सब जगह खड़ा कर दिया, तो यूजुअली 10 के 10 आप स्वीप करना चाहिए था, मगर 10 के 8 आप हार गए। ये चमत्कार कैसे हो गए गोस्वामी साहब? देखिए, ये चमत्कार नहीं है, यह एक भ्रमित किया हुआ लोगों को, और कई सालों से जो लोग एक ही नेता देख रहे थे, ऐसे कई फैक्टर है, छोटे छोटे फैक्टर्स है। जातिवाद के फैक्टर्स मैंने पहले ही बताया आपको, जातिवाद के फैक्टर संविधान के ऊपर भी बताया गया, तो कई बार रिपीट करने पे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, कई लोग अपेक्षा तो पूरी नहीं हो पाती नेताओं द्वारा। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, और रही बात हारने की और जीतने की तो चलते रहता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस इस पर पूरा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। मराठा एजिटेशन आज भी आपके सर पर बैठा हुआ है गोस्वामी साहब। जरांगे पाटिल जी ने कहा अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग 288 सीट्स में हम लोग कैंडिडेट सब जगह खड़ा कर देंगे। मराठा एक जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू था, जहां पंकजा मुंडे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हार गए, तो आपके दिग्गज के नेता लोग हार गए। तो ये अब तक, जब तक आप यू हैव अ प्लान फॉर जरांगे पाटिल, जब तक आपको प्लान नहीं है मराठा रिजर्वेशन इश्यूज को कैसे हैंडल करे, आपको फिर यही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा गोस्वामी साहब।
देखिए जरंगे पाटिल वही है जिन्होंने बोला था कि मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। आज वे 288 सीटों पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें किसी बड़ी पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों का पीछे से सपोर्ट है। तो आपको ये मालूम नहीं था कि ये लोगों के साथ सामने सर चंदन मालूम था, गोस्वामी साहब, लेकिन लोगों को चंदन गोस्वामी साहब माफ कीजिएगा, आप बीजेपी के, आप भारतीय जनता पार्टी में ना संघ के भी हैं ना, आप तो आपका तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आरएसएस के साथ भी। सर बचपन से हमें तो ये सिखाया जाता था कि जब चुनाव होता है, ये संघ की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव होता है किसी पर विश्वास मत करो, ये कहा जाता था बार बार। कुछ मालूम नहीं है कौन कब जा करके क्या कर ले। तो जो अभी आप बात बता रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया, ये फैलाया गया, ये आपको मालूम नहीं था क्या? क्या शीर्ष नेतृत्व को मालूम नहीं था कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, देखिए कई बार संविधान की जो बात आती है वो एकदम से उभर के आई थी। यह जब हम लोगों ने 400 पार की बात की थी, उसके बाद में इन्होंने उस बात को पकड़ कर संविधान की बात की, संविधान बदलने की बात की। तब तक वो बात हम लोग संभाल रहे थे, तब तक वो बात फैल चुकी थी पूरी तरह से और लोगों के दिमाग में गलतफहमी पूरी आ चुकी थी। इसके बाद रही जरांगे पाटिल की बात, तो शरद पवार का नाम क्लियरली आ रहा था, शरद पवार जी का नाम। लेकिन ऐसा है कि जनतंत्र और लोकतंत्र में इस बात का स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी कहीं ना कहीं कमियां हैं। हम उस कमियों को किस प्रकार से आगे दोहराए नहीं और उससे सुधारें सर, और हम उस पर बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम द बीजेपी। मालूम है हमें, अभी मतलब काम शुरू भी हो गया, जहां तक मैं जानता हूँ लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है, पूरे नंबर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया है, एक एक चीज शुरू हो गई है आपके हेड ऑफिस में, मालूम है सर। लेकिन सर अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनके लिए काम ही नहीं किया। इसमें कहां तक सच है? अलायंस के हर व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने काम किया। अजीत दादा पवार क्यों बोल रहे हैं, उनके पास क्या रिपोर्ट्स गई है, इसका मुझे पता नहीं। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करेंगे। बाकी मुझे जहां तक मैं ग्राउंड लेवल पे हूं, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने अलायंस के एक दूसरे के लिए काम किया। कांग्रेस ने अपने ऑपोजिशन का रोल खूब निभाना शुरू कर दिया। जेपीसी मांगा है, जेपीसी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम। दे सेइंग 30 लाख करोड़ का जो स्कैम है, इसको मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने एग्जिट पोल्स और दोनों को लिंक करके, स्टॉक मार्केट को लिंक करके एक आर्टिफिशियल हाइक एंड देन इमीडिएट डाउनफॉल, ये दोनों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाबदार है। एंड जेपीसी मांगा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। राहुल गांधी सेज वी वांट अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी। गोस्वामी साहब, इसका जवाब विपक्ष को नरेंद्र मोदी सरकार संसद में देंगी। विपक्ष का काम है केवल हंगामे करना, संसद को ठप करना, इसके अलावा उन्हें कुछ और आता नहीं है। पिछले संसद में देखे गए, पिछले हर टर्म्स में देखा गया। कल एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसको बीजेपी की शर्ट लाने, टी शर्ट देने की बात कही। इस प्रकार से जो उनके आचरण रहे हैं, उसका पूरा जवाब, जेपीसी का जवाब पूरा संसद में नरेंद्र मोदी सरकार देगी। और जो नीट का वापस इंक्वायरी, कांग्रेस लगातार बोल रहे नीट का भी स्कैम है। कैसे फुल मार्क्स 720 टोटल मार्क्स है, वो 67 कैंडिडेट्स और एक ही क्षेत्र सेंटर से बहुत सारे लोगों को मिला। तो नीट का भी एक तो था कि उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक्स का स्कैम की वजह से बीजेपी को बहुत तकलीफ हुआ था। आगे जाके नीट में जो हो रहा है, तो क्या इसका टोटल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होने के बाद, बिकॉज ये क्या है, स्टूडेंट्स का भविष्य, सब स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए हैं, तो आप अगर इसको टैकल नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा बीजेपी, पेपर लीक्स, ये सब क्लोजली निट है। गोस्वामी साहब, नहीं देखिए, जांच एजेंसियां, जो भी एजेंसियां वो काम कर रही है, इस प्रकार से किसी के ऊपर अन्याय नहीं करती है। नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबके विकास के लिए है। किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार का पहला उद्देश्य है, ध्येय है। रही बात जो जांच होगा, जिस प्रकार जांच होती जाएंगी, उसको सभी का संवैधानिक जो भी बातें हैं उसका जवाब संसद पटल पर नरेंद्र मोदी सरकार देंगी। इसके अलावा सबके साथ में न्याय होगा, यह मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि 5 साल जो मोदी साहब के हैं, जैसे
उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना का स्पोक्सपर्सन संजय राउत का कहना कि द पाथ इज नॉट इजी, ये 5 साल मोदी जी को आसान नहीं होगा। और आगे सब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहते हैं कि 5 years ऑफ कॉम्प्रोमाइज, आपको बहुत सारे इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कॉम्प्रोमाइज करना, जातीय जनगणना पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दे बिलीव दैट अग्निवीर स्कीम पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, एनआरसी और ये तो सीएए। तो हाउ डू यू सी आने वाले 5 साल में किस प्रकार पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज होगा गोस्वामी साहब? देखिए, ये जो विषय बता रहे हैं ना, वो खुद की पार्टी के एजेंडा बताते हैं। सुबह उठ करके वो अपनी एजेंडा बताते हैं, दूसरों को गालियां देने का काम करते हैं। सरकार बनी है, केंद्र की सरकार 5 सालों में बहुत अच्छा काम करेगी, भारत को हर व्यक्ति के साथ न्याय करेगी, भारत को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, विकास करेगी, और सभी विषयों पर जो हमारे एजेंडा है उसकी सभी विषयों पर नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी। रही बात संजय राउत की, संजय राउत का हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसके तरफ ध्यान नहीं देता कि सुबह उठ के क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। लेकिन चंदन गोस्वामी साहब यहाँ पर संजय राउत जी को कोट कर रहे हैं, केसी त्यागी जी को, जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर दोबारा पुनर्विचार होना चाहिए, और जहां तक के सीएए का प्रश्न है उस पर भी प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। ये तो केसी त्यागी जी ने कहा है, नीतीश कुमार के जो सुना मैंने, वो भी बाइट सुनी मैंने। तो इस पर नरेंद्र मोदी सरकार के जो है अमित शाह जी है, वे सब बैठकर उस पर जो उनका कॉमन एजेंडा होगा उस पर बात करेंगे ना। लेकिन चंदन गोस्वामी साहब, जहां तक मैं जानता हूँ, पूरी बात सुने, जहां तक मैं जानता हूँ, मोदी जी को, अमित शाह जी को, बाकी जितने भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मुझको ऐसा लगता है मोदी जी इनफैक्ट विल प्रेफर टू सिट इन द ऑपोजिशन देन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज प्रिंसिपल्स, जहां तक मैं जानता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो अंडर प्रेशर आने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है सर? देखिए, हमारे जो मैनिफेस्टो में जो दिए गए, जो हमारा मैनिफेस्टो दिया गया था जनता के सामने, उस सभी प्रश्नों पर नरेंद्र मोदी सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यह भी मुझे विश्वास है। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी खुद बोल रहे हैं एनडीए की सरकार है, आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी घटक है ना। ठीक है, हमारी आदत हो गई है 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार बोलने की। वैसे है तो नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें क्या है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार है सर, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई, उसमें क्या है। लेकिन ऐसा आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा, आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा सर। जरूर। नागपुर से यहाँ तक कोई ज्यादा खास कोई फासला नहीं है। आज आप फोन पे भी भेज सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक भेजी नहीं। याद रहेंगे सर। चलिए, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार आपकी सरकार बन रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे कल। मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा जो उनका कार्यकाल होगा इस बार असल में देश के लिए वो सब होगा जो आज तक हम लोग सोचते हैं कि देश के लिए होना चाहिए, यानी सबसे पहला फोकस होना चाहिए किसी भी तरीके से गरीबी को हटाना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना ध्यान केंद्रित करेगी। चंदन गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम। But the path ahead is somewhat difficult, Pradeep ji. It's not going to be very easy. I mean, sir, if you were, or if I was the Prime Minister, I knew that the potential problems from Nitish Kumar, I don't think there'll be problem from Mr. Naidu. So they will make I would make an alternate arrangement where Nitish Kumar is concerned. We got a lot of independence, which is much more than what Nitish Kumar has gained. I think Mr. Nitish Kumar may be easier to handle than Mr. Naidu, because still waters run deep. Mr. Naidu will move suddenly and will not tell anybody. Mr. Naidu is right now so much focused on Amravati. He's so much focused on how to get the state moving in where he has left years back, the last term. So he's totally devoted, committed towards Andhra Pradesh, and he wants everything for Andhra Pradesh. And I think his entire focus will be on the development of Andhra Pradesh. Anyway, understanding that, I think Nitish Kumar might, because he's got a history of jumping
from here to there. Yeah, but as far as Mr. Naidu is concerned, he's also been with the Congress, he's been with the BJP, he's been more with the BJP than More with with the the Congress. BJP and more with the BJP right from Atal Bihari Vajpayee's time. We found that But he was then very if you dedicated. remember, at that time, Atal Bihari Vajpayee ji had given him the post of Speaker. Yes, Bala, yes. Bala Yogi Sahab was a Speaker. Speaker of the TDP. And he remained loyal to him till the end. Just before the elections, he moved out because of his Muslim connections. No, in, but obviously Andhra Pradesh. because of the fact that he had local considerations. Yes, yes. And so is the case now, because But he's very clear on what he wants. I mean, there is no two ways about where Chandrababu Naidu is. Now there is no elections right now. You have to consider the fact that Chandrababu Naidu has already promised 4% reservations for the weaker sections among Muslims. So I don't think he's going to compromise on that. He has promised it even during his election campaign in Andhra Pradesh. So I don't think he's going to compromise on that. Of course, he can always say that since the case is lying in the Supreme Court, therefore his hands are tied. But over there, notwithstanding anything and everything that the BJP has said or the Prime Minister has said, this is one of Mr. Naidu's main promises to his electorate. Now I think he's got 5 years for the entire term of 5 years, where Lok Sabha and the state elections are concerned. Probably that might not be his priority. Right now his priority probably is getting back his capital of Amravati, and you can see the assets, the value of real estate has taken a jump out there. I still say that Mr. Modi will have to steer his way very, very carefully over here, because even, for example, Jayant Chaudhary, even though he has only 2 MPs, he was made to sit in the second row, and people with just 1 MP, they sat on the stage. And today Jayant Chaudhary has kind of disappeared. He switched off his phone, and his MPs have gone away with him. So it's already started. I think it's so easy now. If you're in command as a Prime Minister, it will be just a matter of time where even before the elections, people were saying the India Airlines flock breaks over. So it will be much more easier for Prime Minister to manipulate. Quite possible, but then manipulate the India Alliance. But then Dada Pawar completely. We expected that Mr. Sharad Pawar would find it very difficult even to hold on to Baramati. And look what has happened. But Miss Supriya Sule has won by 1,58,000 votes, and she has polled 7,32,000 votes. Highest number of votes ever polled by Supriya Sule is this time. If the Modi-Amit Shah duo had not destroyed and broken Sharad Pawar's NCP, if they had not broken Uddhav Thackeray's Sena and taken the flock around, the results would have been 48-0. Because the MVA together, undivided MVA yeah, which was is all right, but all I'm saying is... I'm saying they actually did a master stroke what they did. They divided and they got 17 seats. They made Eknath Shinde get, Eknath Shinde has got around 13% of the votes. Pradeep ji, but we still miscalculated the power of Sharad Pawar. He's still there. Let's be very clear. Now, we thought he was finished. He's not. Thought that Ajit Pawar in 6 months' time or 1 year's time, 2 years' time, could take on the might of Sharad Pawar. Sharad Pawar has given about 30 years, around 30 years for blooming and making his organization. And we expected that in 2 years Ajit Pawar would decimate him in Baramati, when he was alive. It didn't happen. Because here, I think Eknath Shinde could take 13% of the votes. Because if Balasaheb Thackeray was there, these things would never happen. Because Balasaheb was not there, he managed in 2 years to take 13% of the votes, sir. That's a great move by itself. But Mr. Sharad Pawar proved us all wrong. Proved everybody wrong. He's still standing, and he's still there, and he's still very, very strong. And Sharad Pawar's vote percentage has fallen. His vote percentage... But he's got 8 seats. He's got 8 seats, but it was 10.27, reduced to 10.27 now. And earlier, in 2019, his vote share was 16%. But they fought more seats at that time. Naturally, the percentage of votes will be higher. No, whichever way you calculate it. Yes, sir, in 2019, the NCP fought more seats. Naturally, your percentage of votes would be higher. But it was reduced. This time, even if you see... This time they fought only 10 seats. But the 5% of difference in the vote share. Pradeep from 2019 to now. Pradeep ji, which is all right, but all I am saying is right here, we discussed the fact that that Sharad Pawar is finished. And he's not.
He's bounced back. I don't know why you're not even acknowledging the fact that he has bounced back. I mean, Supriya Sule has won. Ajit Dada Pawar has been destroyed in his own bastion. Even in the very assembly from which he wins, his wife has lost from there. Now, And I Sharad Pawar think has you won. should look at the larger context, the nationwide context. Who has gained? It's the BJP who has gained. BJP has gained. Where has the Where- BJP gained? where BJP he has is- lost 63 seats. I'm talking where Maharashtra is concerned, where they were going to get 0, they have got 17. Sir, that's a speculation. I personally believe. No, that is what, if it was I personally- United MBA would have given a clean sweep. Totally. That's speculation. That's a macro way of looking at it. But a Let's look at it. micro way of looking at it is Ajit Pawar versus Sharad Pawar. There is every possibility, in my personal opinion, that the BJP on its own would have destroyed the reputation of the MVA to such an extent that there's a possibility that they might have come back with 30 seats. The BJP on its own, even Yes. today, has got the highest vote share, around 26 point something. I would still say that's because they fought the highest number of seats. They fought 34 seats. Last time it was 27 with the same number of seats. I think last time they fought lesser number of seats, if I'm not mistaken. I think they fought 32 seats, if I'm not 28 mistaken. this time. They fought 34 seats. इस बार इनको 34 सीट पे लड़ी है भारतीय जनता पार्टी. No, last time they fought 25 seats. Exactly. So the this percentage time- would be less. So this time the vote 3 seats percentage for would be higher. 28. Anyway. Percentage that's- would be higher. Let's be very clear. The larger the number of seats in which you fight, your percentage goes up. Vote percentage goes up. But all I'm saying is right now, it is going to be very difficult for Mr. Modi to work exactly the way he used to work earlier. In any event, right now with us is Mr. Dhananjay Junarkar. After a long time,